awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters, let us begin this series of novena for 9 days with a short prayer. Let us close our eyes and welcome God in our midst, so that He may make this Pentecost novena a very meaningful and powerful one for all of us to experience powerfully the first Pentecost experienced by the disciples of Jesus. Loving God our Father, we thank You for all Your blessings. Thank You for giving us this opportunity to be in solitude and silence, in a way to experience the experience of the apostles who lived in fear and uncertainties after the departure of Jesus, Your Son. Loving God, we ask You to bless each one of us, so that we truly, through our participation in these 9 days of novena, we may experience powerfully the power of the Spirit working in our lives and become transformed and renewed in the context in which we live today. Be with all of us, Lord, who would be listening to Your word being delivered to us through our bishops, lay leaders. Bless us, and we make this prayer, Heavenly Father, in Jesus' name. Amen. My dear brothers and sisters, we are going to begin these 9 days of novena for Pentecost. It's not very unusual for the people in Delhi. I still remember in 1986, when we first started this Pentecost vigil, it was only for a day, in fact for a night, concluding with the Holy Mass on Pentecost Sunday. People used to gather from all over Delhi. The number was about 400 to 500 people. Went on for some years, and the number increased, and we shifted this gathering to Diocesan Community Center. It went on for years. Then, through God's grace and blessings, we have a center called Jivan Jyoti Ashram in Burari. People from all over Delhi used to come to this center every day for 9 days for prayer, reflections, and celebration of the Eucharist. Final day used to be concluded, whole night vigil, with the Eucharistic celebration to conclude. This year, the context is very different, in a way, as we believe in God's grace and providence. Like St. Paul, we say God works for good in everything for all those who love Him. Surely we love Jesus, we love God, and therefore we take this context in a very spiritual way. All of us, as individuals, as members of institutions, we have been together in solitude and silence, praying, attending the Mass, listening to God's Word, listening to the signs of
of the times around us every day. I like to read a passage from the Acts of the Apostles before Jesus was taken up into heaven. St. Luke's Acts of the Apostles goes like this. Chapter 1, verse 3 onwards. After his passion, he presented himself to them, giving many signs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and taught them concerning the kingdom of God. Once, while he was eating with them, he told them, "Do not leave Jerusalem, but wait for the fulfillment of the Father's promise, about which I have spoken to you. For John baptized with water, you will be baptized with the Holy Spirit within a few days." This was a promise given by Jesus during the last discourse after his last supper with his disciples. Don't be disheartened, don't be troubled because I am going away. My Father will send you a helper, comforter, an advocate to speak for you. He will be in my place, teaching you everything about what I taught you. And so, after the promise of Jesus and he was taken up into heaven, the apostles were huddled together along with Mary, our mother, in Jerusalem, praying, spending their time in solitude and silence and with uncertainties. On the Pentecost day, it was 50th day of Easter, people, the Jewish people, spread all over the regions and Asia Minor. They were all there to celebrate the Pentecost, the 50th day, when they used to celebrate the harvest festival and offer the first fruits of the harvest at the altar. On this day, the apostles and the crowd experienced a powerful movement of the Spirit. So much of noise and thunder and winds. And the apostles experienced the power of the Holy Spirit in their lives. They were illiterate people coming from different backgrounds. They are fishermen, tax collectors, and they came out boldly. They could talk to the crowd assembled there in different languages. And St. Peter spoke to them courageously about Jesus, his death and his resurrection. And the people were cut to the heart, the scripture says. And they came running to Peter. "What shall we do?" they asked, "to inherit eternal life?" They were repentant, they were sorry for what they had done, and thousands accepted Jesus in their life and they were baptized. That's how the church was born, my dear brothers and sisters. The apostles and the believers went from place to place from then on, in spite of the persecutions, hardships and trials, from place to place, from country to country, to preach the good news. They understood their mission was a missionary goal to reach out to everywhere the message of Jesus and spreading God's kingdom. And in this movement of the apostles from place to place and in the growth of the early church, it was the Holy Spirit as a person who guided them, led them move forward with courage and determination. There were uncertainties, hardships, persecutions, but they were not frightened. That's how the church grew. And we are in a similar fashion, huddled together in home, in institutions, in churches, praying in silence and in solitude, for God may reveal to us what He really wants us to understand and accept and experience during these days.
So I invite you, my dear friends, to enter into this 9 days of novena in a very prayerful way. Let us, with earnest heart and mind, remain open for the infilling of the Holy Spirit in our lives. We are baptized people. St. Paul tells us, if you are baptized, you are a new creation. Like the early church who came together every week and to read God's word and to break the bread together and shared whatever they had in common so that no one was in need. That was a new way of life. Science, external science of being a new creation, a new way of life. Perhaps that is the message for all of us. God is inviting us to lead a new way of life in the church and in the world. सभी को जय यीशु। एक और बार हम इस दूसरे दिन के पेंतिकोस्त नोवेना में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा पहला सेशन जो कि स्तुति आराधना का सेशन है, आज हम कई नए गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो हमारे सभी स्तुति के योग्य है। वो स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में कि मैं प्रभु के लोगों के स्तुतियों में विराजित परमेश्वर हूं। और हम पूरे नए विधान में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कितने सारे अंधों को रोशनी दी कि वो देख पाए, कितने सारे मुर्दे जी उठे। और हम आज प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे, बहरे सुने, मुर्दे जी उठे। आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर, आइए हम आनंदित होकर ये विश्वास का गीत हम एक साथ गाएंगे कि प्रभु, मैं कचड़े की जिंदगी जी रहा था, पर तूने मेरा आंखें खोल दी और मैं इस कारण से तेरे को देख सकता हूं, तेरे पवित्र आत्मा के चमत्कारों को, वरदानों को, फलों को स्वीकार कर सकता हूं। आइए हम सब मिलकर गाते हैं कैसा तेरा प्यार है। ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने। मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने। कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चलाता, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने, मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने, मुर्दे जी उठे।
पर बहाया, हर एक सांस की तेरे दान को पाया मैंने मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चलाते यीशु यीशु। कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के पैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के पैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे पैर सुने मुर्दे जी उठे। प्रिय भाइयों बहनों, आइए इस क्षण हम प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं। हम अपने पूरे दिल को, पूरे मन को प्रभु यीशु को समर्पित करेंगे और हम खुलकर इस क्षण प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। आइए हम अगर कोशिश करें कि हाथ उठाए और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा खुदा है। प्रभु यीशु मैं तेरे बारे में और बातें सीखना चाहता हूँ, मैं तेरे को और करीब से जानना चाहता हूँ। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। सभी स्वर्गदूतों के संग, सभी संतों के संग हम तेरी स्तुति करते हैं। अनंत काल तक तेरी स्तुति हो। पिता परमेश्वर, मैं तुझे नाम से पुकारता हूँ। आब्बा पिता, आब्बा आब्बा, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। आब्बा पिता, मेरे जीवन में आ, तेरे कलीसिया के कार्य में मुझे लगा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा अपना बल प्रदान कर, शक्ति प्रदान कर। आप पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। आइए क्षण हम ये गीत गाएंगे, पावन आत्मा तेरे दान दो। आइए हम तड़पते हुए हृदय के साथ, तड़पते हुए दिल के साथ और मन के साथ हम प्रभु को बोले कि प्रभु यीशु तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरपूर कर, संपूर्ण कर, कि मैं तेरे दान को, वरदानों को, फलों को पा पाऊं। आ पवित्र आत्मा। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति,
योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आइए क्षण हम सब पवित्र आत्मा में भरपूर होकर, संपूर्ण होकर अन्य भाषा में स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मैं सबको अनुरोध करता हूं, प्रोत्साहन देता हूं, जिन जिन के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है वो अपने जीव को ढीला छोड़े, क्योंकि हम ये नए पेंतिकोस्ता के अनुभव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि संत पोप जॉन 23वें ने कलीसिया के सामने रखा था कि एक नया पेंतिकोस्ता का अनुभव हम सबको। आइए हम सब अपने जीव को ढीला छोड़कर इस क्षण प्रार्थना करें। ओ रामा ला रामा शिया रामा खराफा बारा ला रामा शंदरे रिया ला रामा खराफा बारा ला रामा शुद्धरू ला रामा खराफा बारा यीशु ज्वाला मसीहा ला रामा खराफा बारा ला रामा शंदरा किया ला रामा खराफा बारा ला रामा ओ रे 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 मा खबारा ला रामा शिया रामा खराफा बारा शंदरे रिया ला रामा खराफा बारा ला रामा शुद्धरुआ 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 ला रामा खराफा बारा ला रामा मला खमारा ला रामा शिया रामा खराफा बा खमाला रा शिया रामा खराफा बारा शंदरे रिया ला रामा खराफा बारा आइए क्षण हम पवित्र आत्मा को महसूस करते हुए हम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनने के लिए हम अपने मन को खाली करें और पूरी तरीके से हृदय को समर्पित करें कि हम प्रभु के वचन को आज स्वीकार कर पाए। हम सब मिलकर क्रूस का चिन्ह लगाएंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज पेंतेकोस्त नोवेना का दूसरा दिन है और आज हम पवित्र आत्मा के विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। पवित्र आत्मा क्या है और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, या कहें कि हम पवित्र आत्मा को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, उसका अध्याय 3 और वचन 17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वचन क्या कहता है? क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। उत्पत्ति के ग्रंथ उसके अध्याय 1 वचन 1 से 2 में हम पढ़ते हैं। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। अब ईश्वर की आत्मा, किसकी आत्मा? ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु की आत्मा है, पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का तीसरा जन है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य है। हम संत यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 16 और वचन 13 में। संत यूहन्ना का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वचन 13। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वचन क्या कहता है? जब वह सत्य का आत्मा आएगा
तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। हम इसी वचन को हम अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे, तब हमें और भी स्पष्ट हो जाएगा कि पवित्र आत्मा क्या है। सेंट जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 13। When, however, the Spirit comes who reveals the truth about God, He will lead you into all the truth. He will not speak on his own authority, but he will speak of what he hears and will tell you of things to come. इन दोनों वचनों में हम देखते हैं, हिंदी वर्जन में और हम इंग्लिश वर्जन में। हिंदी वर्जन में हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, परंतु इंग्लिश वर्जन में हमें स्पष्ट पता चलता है हमें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, क्योंकि पवित्र आत्मा को ही से संबोधित किया गया है। ही से यह हमें दर्शाता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, पवित्र आत्मा कोई आग नहीं है, पवित्र आत्मा कोई जल नहीं है, पवित्र आत्मा कोई कपोत नहीं है, परंतु ये सब पवित्र आत्मा की एक प्रतीक है, ये पवित्र आत्मा की एक चिन्ह है। तो पवित्र आत्मा क्या है? कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उसका एक अपना व्यक्तित्व है, उसकी एक पर्सनालिटी है। यहां पे व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति से है, पर्सन से है। उसका एक अपना पर्सनालिटी है उसका। जिस प्रकार एक व्यक्ति सोच सकता है, जान सकता है, समझ सकता है और उसे सुख दुख का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा व्यक्ति के होने के नाते उसका भी एक सोच है, एक माइंड है उसका, उसकी एक इच्छा है, उसका एक विल है, उसके एक भावनाएं हैं, उसकी इमोशंस है। वह सोच सकता है, वह समझ सकता है, वह बोल सकता है, वह सुन सकता है। ये सारी चीजें वह सब कुछ ये कर सकता है। और ये कौन सा ऐसा कर सकता है? एक व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र में हम पढ़ते हैं, उसका अध्याय 8 और वचन 26 में, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारे अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। अर्थात पवित्र आत्मा हमारे मन की बात को जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है, हमारे आहों को जानता है। उनको एक ऐसा एहसास है हमारे प्रति। यह सब कुछ कौन कर सकता है? ये एक व्यक्ति कर सकता है। हम एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र
उसका अध्याय 4 और वचन 30 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी। वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए अपने आप लोगों पर अपना मोहर लगा दिया है। आप उसे दुखी नहीं दें, आप उसे दुखी ना करें। कहने का तात्पर्य यही है कि पवित्र आत्मा का भी जो है ना अपनी भावनाएं हैं, उसको इमोशंस है, उसे भी सुख और दुख का अनुभव है उसको। जैसे हमारे जीवन में हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति होने के नाते पवित्र आत्मा को भी सुख और दुख का अनुभव। हम पवित्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हम न्यायकर्ता के ग्रंथ में समसून एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, ईश्वर उनके साथ था, लेकिन जब वो पाप में गिर गया, जब वो एक वेश्या, दलीला नाम के वेश्या के वश में आ गया, तो प्रभु उसको छोड़ करके चला गया। तो जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब हम उसको दुखित करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चला जाता है। हम पवित्र आत्मा को हम हमारे जीवन में हम कैसे हम धारण कर सकते हैं? पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि हमें एक शुद्धता और पवित्रता का जीवन हमें व्यतीत करना है। शुद्धता के बिना हम पवित्र आत्मा को हम ग्रहण नहीं कर सकते। शुद्धता के बिना हम पवित्र आत्मा का अनुभव हम नहीं कर सकते। हम प्राज्ञा के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसका अध्याय 1 और वचन 4 और 5। प्राज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करता जो बुराई की बातें सोचते हैं। वचन क्या कहता है कि प्राज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचते और उस शरीर में निवास नहीं करता जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाली पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करती है। क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाली पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करती है। तो पाप एक बहुत बड़ा रुकावट है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। वचन साफ बताता है कि पवित्र आत्मा उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। तो इसलिए अगर हमें पवित्र आत्मा को हमें प्राप्त करना है, यदि हमें पवित्र आत्मा को हमें अपने जीवन में उसका अनुभव प्राप्त करना है, तो हमें पाप से हमें दूर रहना है, क्योंकि पाप हमें ईश्वर से अलग कर देता है। दूसरी बात कि यदि हमें पवित्र आत्मा को हमें हमारे जीवन में अनुभव पाना है, तो हमें हमारा एक विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना हम पवित्र आत्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें विश्वास के साथ आना है प्रभु के सामने और पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगर हमें विश्वास नहीं है हमारे जीवन में, तो हम पवित्र आत्मा को हम नहीं पा सकते हैं। इब्रानियों के नाम सन पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 11 और वचन 6 हमें बताता है कि विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र
नहीं बन सकता। यदि कोई ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, यदि तो कोई ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, तो उसे यह विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हम माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं, माता मरियम ने महादूत संत गाब्रिएल के वचन पर विश्वास किया और वचन देह धारण किया। जब उन्होंने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, और उसी क्षण मां मरियम ने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया। तो आइए, हमें बड़े विश्वास के साथ में प्रभु के पास आना है, विश्वास के साथ। पवित्र आत्मा का वरदान हमें यूं ही नहीं मिल सकता है। पवित्र आत्मा का वरदान हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है। अगर हम में विश्वास नहीं है तो हम पवित्र आत्मा के वरदान को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संत मार्कुस का पवित्र सुसमाचार उसका अध्याय 16 और वचन 17 हमें स्पष्ट बताता है कि विश्वास करने वाले कौन? विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। कौन चमत्कार दिखाया करेंगे? विश्वास करने वाले। वे अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, और जब वे विष पिएंगे तो वह उसको हानि नहीं पहुंचाएगी, और रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हम एक बार वचन को और फिर से हम गौर करेंगे इसके ऊपर में कि विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उनको कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये तभी संभव है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारा विश्वास दृढ़ है। तीसरी बहुत बड़ी बात है कि यदि हमें पवित्र आत्मा को हमें पाना है, पवित्र आत्मा को हमें ग्रहण करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालित होना है, तो हमें एक दृढ़ता के साथ में, एक इच्छा के साथ में, एक दृढ़ इच्छा के साथ में प्रभु के पास आना है, एक प्यास के साथ में आना है। हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए? एक बच्चे के मनोभाव के अनुसार होना चाहिए, और हम बड़े प्यास के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ में और विनम्रता के साथ में अगर हम प्रभु के समीप आए और उससे हम पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें, तो प्रभु जरूर हमें पवित्र आत्मा हमें प्रदान करेगा। हम संत मत्ती के पवित्र सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वचन 7 अध्याय 7 और वचन 11 में, यदि तुम बुरे होने पर भी अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें प्रदान करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें अर्थात वह पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें कुछ पल के लिए और हमारे अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। प्रभु हमें एक शुद्धता और पवित्रता का जीवन बिताने की कृपा दे दीजिए। हमें प्रार्थना करने की शक्ति और सामर्थ्य दे दीजिए, जिससे कि हम बड़ी दीनता के साथ में और बड़ी भक्ति के साथ में हम प्रार्थना कर सकें और हम
एक नया पेंतेकोस्त का हम अनुभव कर सके। अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अर्चना मिन्स है। मैं जेएमसी सेकेंड ईयर बीएलएड की स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई, मेरे मौसा मौसी और मेरा कजिन भाई रहता है। तो मेरा साक्ष्य मेरे बचपन से शुरू होता है कि किस प्रकार मैं ईर्ष्या और द्वेष में बढ़ रही थी और किस प्रकार मैं आनंद और खुशी पूरी दुनिया में तलाश कर रही थी, और मुझे वो आनंद और खुशी उन लोगों में मिली जो मेरे सबसे करीब थे और जिनको मैं कभी सराहना जिनकी मैं कर नहीं पाई। तो जैसा मैंने बताया, हम घर में 3 बच्चे थे और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो सब ऑफिस जाते थे मेरी मम्मी को छोड़ के, और मेरी मम्मी हम तीनों का ध्यान रखती थी। तो क्योंकि मेरे भाई छोटे थे तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और इस बात से मुझे बहुत ही तकलीफ थी, इस बात से मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। मैं अपने भाइयों से ईर्ष्या और द्वेष में बढ़ने लगी। मुझे उनसे घृणा होती थी कि सारा ध्यान उन पर दिया जाता था। मुझे बचपन से यही लगता था मेरे घर पे लड़का और लड़की को लेकर भेदभाव किया जाता है और हर चीज़ के लिए मुझे मना किया जाता है। तो घर वालों के साथ संबंध मेरे अच्छे नहीं थे। मैं किसी से उतना बातचीत नहीं करती थी। मेरी सबसे सिर्फ लड़ाई होती थी। क्योंकि घर में संबंध इतने अच्छे थे नहीं, तो मैं अपने दोस्तों को अपनी दुनिया बना लिया था। पर दोस्तों के साथ ये तकलीफ थी कि मैं कभी किसी एक दोस्त के साथ या किसी एक ग्रुप के साथ टिक नहीं पाई। कभी लड़ाई हो जाती थी, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, कभी कुछ, तो कभी टिक नहीं पाई। धीरे धीरे करके मैं 9वीं 10वीं की कक्षा में आई और अब मैंने एक नया फ्रेंड सर्कल ज्वाइन कर लिया था। इस फ्रेंड सर्कल में लड़के लड़कियां थे, बहुत सारे लोग थे। ये बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल था और इस ग्रुप में मेरा एक्स था। हालांकि मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वो और मैं एक ही ग्रुप में हैं, लेकिन मुझ में अहम की भावना थी, मुझ में ईगो इश्यूज थे। मेरे सभी दोस्तों में से ज़्यादातर लोग सिगरेट पीते थे या अल्कोहल कंज्यूम करते थे, लेकिन कभी मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, ना ही मुझे ये चीज़ करनी थी, ना मैंने अपनी इच्छा जाहिर की इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन ये इस नए फ्रेंड सर्कल में सभी दोस्त करते थे मेरे, और क्योंकि मेरा एक्स भी था, अहम की भावना मुझ में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने भी सिगरेट पीना शुरू किया, जो सिर्फ दिखावटी था। कब आदत बन गया मुझे पता भी नहीं चला, और फिर ऐसे दिन आने लगे कि मैं बिना सिगरेट पिए रह नहीं सकती थी। अब धीरे धीरे करके सिगरेट मेरी आदत बन गई थी और छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे एक्स के कारण किसी बात पे मेरी उस दोस्त के साथ लड़ाई हो गई जिसके साथ मैं सबसे करीबी थी, और दोस्तों के साथ लड़ाई में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को प्रोसेस करूं। ये वो दोस्त था जो सबसे खास था मेरे लिए। मैं आहत हो गई थी इस बात से कि वो मुझे समझ नहीं पाया। तो अब मैं उस मोड़ में आके रह गई थी जहाँ मैं अकेली हो गई थी। कोई था नहीं, किसी के साथ दुख बांटने के लिए नहीं था, किसी को घर वालों के साथ कभी उतना अच्छा रिश्ता रहा नहीं, ना दोस्त थे। तो अब थोड़ा दिक्कत चल रहा था। मेरे जीवन का नया मोड़ YU4C की प्रार्थना सभा लेकर के आई। तो बचपन से रिट्रीट्स जाते थे और पता था YU4C के प्रेयर मीटिंग्स होते हैं 3 से 5 यूसुफ सदन में। एक दिन बस मैं ऐसे ही चली गई। ईसाई धर्म के बारे में बचपन से जानते थे, माता पिता ने बचपन से सिखाया था। मेरी माता प्रार्थना में जुड़ी हुई है, तो वो हमें बचपन से ऐसे किस्से कहानियों में बाइबल की बातें बताती थी। बेड टाइम स्टोरीज के रूप में डैनियल, रूथ, जूडिथ, इनकी कहानियां सुनाती थी। ईसाई धर्म की तालीम हमें बचपन से मिली थी, लेकिन कोई व्यक्तित्व संबंध नहीं था मेरा ईश्वर के साथ, मेरे प्रभु के साथ। तो YU4C में आने के बाद कुछ नहीं करती थी, बस आती थी, 3 से 5 प्रेयर मीटिंग अटेंड करो, बस हो जाता था। वही मेरा जीवन में एक नया मोड़ लेकर के आया और मैं अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर पाई, अपने परिवार में आनंद का अनुभव कर पाई,
मुझे पवित्र आत्मा ने आत्म संयम का वरदान दिया और प्रेयर मीटिंग्स आने के बाद कुछ महीनों के बाद मैं सिगरेट छोड़ पाई। मुझे धैर्य का वरदान मिला कि मैं अपने भाइयों के साथ धैर्य से काम लूँ, क्योंकि वो मुझे हर चीज़ में परेशान करते थे और मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता था। मुझे धैर्य का वरदान मिला और मैं उस चीज़ से उभर पाई। मुझे हमेशा ये लगता था कि Y4C के जितने भी लीडर्स हैं वो बहुत खुश रहते हैं, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे भी वही आनंद, वही खुशी चाहिए थी, इसीलिए मैं प्रेयर मीटिंग्स में आने लगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो आनंद, वो खुशी ईश्वर में है। उससे जुड़े रहने के बाद हमें तकलीफों का सामना करने की हिम्मत और शक्ति मिलती है। हमें एक नया मोड़ मिलता है, एक नया रास्ता मिलता है कि किस प्रकार हम चीज़ों को देख पाएँ, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ पाएँ। मुझे बचपन से बड़े भाई बहन या ऐसे दोस्तों की चाह थी कि जो मुझे समझ पाए। Y4C प्रेयर मीटिंग्स में मुझे वो अवसर मिला कि मैं इतने सारे अपने करीबी दोस्त बना पाऊँ, बड़े भाई बहन बना पाऊँ जो मुझे समझे, मेरी बातों को समझे। Y4C ने मुझे इतने सारे दोस्त दिए हैं कि अगर मैं किसी को भी फ़ोन करती हूँ तो वो मेरी बात सुनते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे ईश्वर से जोड़े रखने में सहायता करते हैं, मुझे ईश्वर की ओर आकर्षित करते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझ में कोई खूबी नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन मैंने छोटे मोटे जो भी टैलेंट था, डांसिंग या क्रिएटिविटी स्किल्स या जो भी था, पवित्र आत्मा ने उसको इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए मुझे रास्ता दिया। मैं AV कोऑर्डिनेटर बन पाई Y4C प्रार्थना सभा का। अपने डांस और क्रिएटिविटी से मैं ईश्वर की स्तुति और महिमा कर पाई। मैं आत्मविश्वास में बढ़ने लगी। मैं उन लोगों में से थी जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। मैं कभी किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। मुझे आत्मविश्वास का वरदान मिला और मैं आउटरीच प्रोग्राम्स में गई और ईश्वर की शिक्षा दूसरों को दी। इतने सारे यूथ से बात करने का मौका मिला, उनको अपना जीवन का साक्ष्य देने का मौका मिला। मैं हर उस कार्य में आगे बढ़ी जिस चीज़ में मैं पीछे थी या जिस चीज़ में मैं डरती थी करने के लिए। मुझे पवित्र आत्मा ने एक आनंद और खुशी का अनुभव अपने दोस्तों में, अपने परिवार में दिया जो मेरे आसपास थे। मैं सैक्रेमेंट समझने लगी। मैं नाम मात्र ईसाई से आगे बढ़ के एक व्यक्तित्व संबंध स्थापित कर पाई ईश्वर के साथ। मिस्सा मेरे लिए बहुत ही पवित्र बन गया। बाइबल पढ़ना मेरे लिए बाइबल पढ़कर उसमें ध्यान देना, उसकी बातों को समझना ज़रूरी था मेरे जीवन में, क्योंकि उससे मुझे मेरे काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिलता गया। मुझे कन्फेशन का इम्पोर्टेंस पता चला और धीरे धीरे करके मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली, एक नया मोड़ मिला जो ईश्वर की ओर मुझे प्रेरित करता था। मैं पवित्र आत्मा ने मुझे अन्य भाषाओं का वरदान दिया और इस अन्य भाषाओं के वरदान से मैं जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ या जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं ईश्वर की स्तुति करती हूँ बस अन्य भाषाओं के वरदान में। और उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस दिक्कत से निकलने के लिए या उस चीज़ को टैकल करने के लिए एक नया रास्ता अपने आप मिल जाता है। मुझे इतने सारे वरदान और दान दिए हैं पवित्र आत्मा ने कि मैं हर कार्य ईश्वर की स्तुति और महिमा के लिए करने का प्रयास करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस साक्ष्य से प्रेरित हों और पवित्र आत्मा आपको भी दानों और वरदानों से भरे, ताकि आप भी ईश्वर की स्तुति और महिमा के लिए कार्य कर पाएं और एक दिन आप भी इसी प्रकार अपना साक्ष्य दे पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तू सबों को सांत्वना देता और मुश्किल परिस्थितियों में हमारी सहायता करता है। आइए आज हम धार्मिकता के वरदान के लिए प्रार्थना करें कि हम स्नेहपूर्वक पिता ईश्वर की सेवा कर सकें।
हम प्रार्थना करें। हे पावन आत्मा, हमारे दिलों को अपनी अग्निमय अभिषेक से भर दीजिए और यीशु के प्रति एक सच्ची भक्ति उत्पन्न कर दीजिए कि हम यीशु के पद चिन्हों पर चल सकें और यीशु से कभी अलग ना हो पाएं। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी और वे अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना। हे पावन आत्मा, पेंटकोस के दिन के समान हमारे जीवन, हमारे दिलों तथा हमारे मन को अपने अग्निमय प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए। हमें प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, धार्मिकता और परामर्श के वरदानों से परिपूर्णित कीजिए। ईश्वरीय भय के द्वारा पाप से बचे रहें और सदा धर्मनिष्ठ जीवन बिता सकें। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। I'd like to say a few words, my dear friends, as the spiritual director, the Delhi Catholic Charismatic Renewal. Mr. Cyril John, who is a member of the Delhi Catholic Charismatic Renewal, has been leading us in a very powerful way, and to make this Burari Ashram, a retreat center, a very important place for North India and for all those in Delhi who want to come regularly to experience God in their life, to listen to God's word. So I say a few words as given by people. I invite you all to experience the beautiful retreat center in the outskirts of North Delhi. It is a daring initiative by the Catholic lay faithful of Delhi Archdiocese, a calm and quiet place where you can experience the love of God away from the hustle and bustle of the daily life. We have enough rooms for your retreats, for your community retreats, or retreats for the parishioners. We have 2 priests. Also we have religious sisters to take care of the program that would take place in this center. This center in a way was blessed by late Archbishop Arandelastic for approving us to search for a place and build a center. The Archdiocese of Delhi, under the leadership of Archbishop Vincent Conceicao Emeritus, we have been given a small center for the residence of priests. Since then on, it is the contributions of people, first prayer, participation, also their contribution in cash and kind to make this retreat center grow and move forward. We need your blessings, we need your guidance, and we need your support all through. We need your prayers in a very special way, and it is your support would make this center grow more and more.
and to become a relevant one, very meaningful center for all the people in the north speaking Hindi, also for the people in Delhi for the spiritual renewal. So I wish you all every blessing of God, a true spiritual renewal during these 9 days of novena, live streamed by Delhi Catholic Charismatic Renewal under the leadership of Mr. Cyril John. God bless you all. Thank you.